Man down at deep long on, and it's down the leg side, a bit of an anticlimax. Tries to access the offside, but he gets it far straight, and it should be out! He is! Fraser McGurk's gone for a duck! Ashard gets the wicket, and it's the perfect start for LED. Short. He said he's gone tight. It wouldn't matter where he was because that is over the rope. Doesn't time it, but gets it into the wide open spaces on the leg side. Power. There's a drive and a half. Leg side this time, offside last ball, and leg side into the crowd. Perel's away now. Beautiful drive. Lofted, couple of bounces. Now Hope gets in on the action. Just a touch will buy. This time he just sort of scoops it out over the offside. They can't bowl anywhere, and the runs after an early wicket are really starting to come. Lofted, onside. Throws everything at it, and it flies over short third for another 4. Just helped on it in its way. An errant delivery from Naveen ul Haq. One of the reasons, because of the way he bats like that. Hits him on the full, but this too will go for 4. Cut away into the gap for 4. Make the batters hit the square. And that brings Abhishek Porel's half-century. He had a half-century. He had a half-century against RR just the game before, and he comes up with another good one. The ground low, flat and hard. Oh, second, I think he has. The skipper bobbed it up in the air and dived, and held it centimetres. Bishnoi gets the wicket just. This powerful player square of the wicket is Rishabh Pant. Gets a short right on the rope, throws it up, takes the catch. Paran is out there. He judged it perfectly, the man from the... Absolutely, I will look at those figures. That could be a boundary. Heaved away, leg side, gets the boundary just. Goes boundary. That's excellent batting. Hammered down the ground again, beautifully timed, beautifully placed. Extraordinary ability. Just throws the bat at it. Keeps hold of the bat just one hand. One-handed. Out. The skipper goes. And Jaitley, Naveen gets his second wicket. Doesn't time it perfectly. It's enough on it. Axar gives himself room, and he gets it to the... Goes a touch straighter, just clubs it. Big, long on, just turns around and says, I'm getting nowhere near that. Second decker, Stubbs. What a shot that is from Stubbs to bring up his 50. That is quality over the offside. Smiles all around, and fair enough. That is a magnificent knock. Got it over the infield. It's going to be a tough catch. It was always going to be hard. It's Bishnoi, and they come back and scurry through. Axar, fielder's tracking around, another difficult catch, and again it hits the turf. Same man, same result.
Off the toe into the bat, but it goes and Delhi bring up the double ton. Little rambling around. Stubbs is roaring back for a couple, and he'll get there. The big boy had to work. 57 Reading from 25. Partnership of 5. Partnership of 50 comes up off 22. Who would you rather be, Kartik? The home side or the visitors? So Lucknow, they need to win both games. दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और लखनऊ के बीच हुआ यह शानदार मुकाबला पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आज का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स है। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस रोमांचक मैच के बारे में। विशाखापट्टनम के मैदान पर खेले गए इस मैच में मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने दिल्ली के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त शॉट्स लगाकर दिल्ली के गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत ने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से नई मिसाल पेश की और एक नया रिकॉर्ड बना डाला। लेकिन दोस्तों, ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगा कि आखिर लखनऊ की टीम ने दिल्ली के सामने कितने रनों का टारगेट रखा, मिचेल मार्श ने कितने रनों का योगदान दिया और कैसे ये दोनों बल्लेबाज पूरी दुनिया को हैरान करने में सफल रहे। हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी किस टीम के हाथ लगेगी। क्या आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आइए अब चलते हैं मैच की शुरुआत से। 2025 का चौथा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। मैच शुरू होने से पहले सिक्का उछाला गया और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने जीत हासिल की। अक्षर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और लखनऊ को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की टीम की शुरुआत के लिए मैदान पर उतरी मिचेल मार्श और एडन मार्करम की खतरनाक जोड़ी। वहीं दिल्ली के बॉलर मिचेल स्टार्क ने पहले ओवर में गेंदबाजी की। स्टार्क ने अपनी जबरदस्त गति और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने एक शानदार शॉट मारकर अपनी टीम के खाते में पहले 4 रन जोड़े और मैच की शुरुआत धमाकेदार की। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए दिल्ली के गेंदबाजों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। दूसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए, लेकिन मार्करम ने उनकी दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। लखनऊ की टीम अब बेहतरीन शुरुआत कर चुकी थी और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो गए थे। 2 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 12 रन तक पहुंच गया था। अब दिल्ली को विकेट की जरूरत थी, तो मिचेल स्टार्क एक बार फिर तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार मार्करम ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने भी चौका मारा। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर ओवर में 21 रन बटोरे और लखनऊ के स्कोर को 3 ओवर में 33 रन तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बैटिंग ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को हैरान कर दिया था। दिल्ली कैपिटल्स को लगातार विकेट की तलाश थी और उन्होंने अपने गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया। अगले ओवर में विपराज को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर मार्करम को बोल्ड करके लखनऊ को पहला झटका दिया। 46 रन के स्कोर पर मार्करम 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने मैदान पर डटे रहकर अपनी टीम को मजबूती दी। अब इन दोनों के साथ साथ खेल का अंदाज और भी तेज हो गया। 5वें ओवर में निकोलस पूरन ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और लखनऊ को 50 रन के आंकड़े तक पहुंचाया। इसके बाद मुकेश कुमार ने गेंदबाजी की, लेकिन मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर चौका जड़कर स्कोर को और बढ़ाया। अगले ओवर में भी मिचेल मार्श और पूरन ने अपनी शॉट्स से गेंदबाजों को चित्त कर दिया।
अब लखनऊ का स्कोर 7 ओवर में ही 79 रन तक पहुंच चुका था और यह दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से तेज खेलने में सफल हो गए। पूरन ने लगातार चौके लगाकर 25 रन इस ओवर से ही जोड़ दिए और लखनऊ का स्कोर 7 ओवर में 79 रन तक पहुंचा दिया। वहीं दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ इन दोनों की साझेदारी काफी मजबूत होती गई और लखनऊ का स्कोर 10 ओवर के बाद 117 रनों तक पहुंच चुका था। इस बीच मिचेल मार्श ने अर्धशतक पूरा किया और एक के बाद एक शॉट्स लगाकर अपनी टीम के लिए बेहतरीन योगदान दिया। अब तक लखनऊ पूरी तरह से दिल्ली पर हावी हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली ने हार मानने का नाम नहीं लिया। 13वें ओवर में निकोलस पूरन ने एक ओवर में ही 4 चौके लगाकर दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। लखनऊ का स्कोर 13 ओवर में 161 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव ने ऋषभ पंत को पवेलियन भेजा और फिर मिचेल स्टार्क ने निकोलस पूरन को बोल्ड करके उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बावजूद लखनऊ ने डेविड मिलर और शार्दुल ठाकुर की मदद से स्कोर को बढ़ाते हुए 17 ओवर में 1878 रनों तक पहुंचा दिया। अंत में डेविड मिलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ को 209 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। अब दिल्ली के सामने चुनौती थी इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी किस टीम के नाम जाएगी? आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे और रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।